Hello students, I welcome you all on Rescue EduSkill. We are dealing with chapter number 3, Inheritance and Variation. This is lecture number 7. We have seen total 6 lectures and this lecture number 7 is for neomendalism. In this lecture, we will learn codominance, incomplete dominance, multiple alleles and pleiotropy. Okay. So, first we will see Mendel's finding, and in that Mendel's finding, what can say he found with the help of experiment on garden pea. So Mendel's finding on the basis of experiments on garden pea. So first finding, single trait. If the single trait is controlled by single factor, that's gene, and there are 2 alleles for these traits. Okay, a gene is there, or factor is there. According to Mendel, factor is there, and that factor is responsible for character. Okay, and a single character has 2 different traits. Okay, so this is what the first finding that Mendel has given. A single trait is controlled by a single factor, and it has 2 alleles. Okay, and these 2 alleles are nothing but 2 different expressions. Say for example, tall plant and dwarf plant. Okay. Then second one, 2 alleles show interactions. One is complete dominant, other one is completely recessive. In first filial generation, when these 2 alleles they come together, out of these 2, one is completely dominant and second one remains recessive or in dormant form. Third finding is that factors or genes for different traits present on different chromosomes are sought independently. This is what independent assortment or law of independent assortment. So when this factor, they can say there in F1 generation they remain together, but in for when F1, if you cross F1, the gametes are formed, and during gamete formation these get separated or assorted independently. So we will see one by one all these findings of Mendel. Okay, so one gene is responsible for one character. Okay, what we have learned, actually we have learned one gene is responsible for one character. Say for example, height is the character. Okay, so height of the plant can be a small plant or dwarf plant, or height can be a tall plant, or you can say a very tall plant. Okay, so there are 2 expressions. So one gene is one character, height is the character, and there are 2 traits, means 2 alleles are there. One gene is what represented by 2 alleles, and here 2 traits are there. 2 traits means 2 alleles are there for 2 traits, means 2 different expressions are there, tall plant and dwarf plant. Okay, that we have seen in monohybrid cross. Okay, in dihybrid cross also we have seen, suppose this is a phenotype of the plant. In this phenotype, so we have round seed and yellow seed. These are dominant characters. Okay, so round seed is one of the character, correct? So shape of the seed is a character, in that roundness of the seed is what one of the trait. At the same time उसका contrasting जो trait है वो क्या है, wrinkled seed. जो seed round नहीं होता उसको wrinkled seed बोलते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे थोड़ा सा. Okay. दूसरा, color of the seed is what the character. Color is the character, and color can be of 2 different type, yellow color and green color. So yellow color is dominant one, green is recessive one. Round shape is what, a dominant one, and wrinkled shape is what, recessive one. When these 2 are crossed, when these 2 parents are crossed, you can see the gametes R and Y. These 2 gametes are there. For example, ये 2 gamete है, ये 2 gamete और ये उसके 2 gamete, बराबर ना, RY वाले. Okay, so this 2 can say character एक ही gamete में आ जाते हैं, correct? एक गैमेट बनेगा इसका भी एक गैमेट बनेगा, करेक्ट? एंड दिस 2 गैमेट्स दे यूनाइट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा देते हैं, करेक्ट? सो आर कैपिटल है, वाई कैपिटल, इस वाई यू कैन सी देयर आर 2 डोमिनेंट कैरेक्टर्स, एंड दिस 2 डोमिनेंट ट्रेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, राउंड एंड येलो सीड. ओके, यहाँ पर आपको दूसरे भी दिखाई देते हैं, सी स्मॉल r भी है, स्मॉल y भी है, बट दिस रिमेन डॉर्मेंट, वो दिखाई देंगे नहीं आपको फर्स्ट जनरेशन में. बट व्हेन दिस 2 आर क्रॉस्ड, अभी ये वाले अगर हम क्रॉस करते हैं यहाँ पर,
सो राउंड येलो एंड राउंड येलो सीड, ये जो हेट्रोजाइगस F1 के, अगर इसका सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग के बाद आपको जो गैमेट मिलेंगे, द गैमेट विल बी RY, कैपिटल RY, ये वाला कैपिटल RY. सो दिस वन कैपिटल RY इज फॉर व्हाट? राउंड एंड येलो. दूसरा सेग्रीगेट कैसे होगा? कैपिटल R, स्मॉल y इज फॉर व्हाट? ग्रीन कलर, एंड R फॉर कैन से राउंड शेप. सो सीड विल बी राउंड, or can say the character of the seed will be round but it will be green in color if you can say have this combination in the second filial generation. यहाँ पर small r है, capital Y, so color change होगा but seed will be wrinkled. यहाँ पर क्या होगा? दोनों small है तो green and wrinkled. So these can say factors or can say genes, they get assorted or separated in can say when you cross or can say self the F1 or can say F1 hybrid को हम क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो उसके जो गैमेट्स बनेंगे during that gamete formation the factors or can genes they get assorted independently, और उनका आपको कॉम्बिनेशन जो 2 मिलने चाहिए थे आउट ऑफ 2 आपको जो मिलने चाहिए थे उससे बजाय क्या मिला आपको? 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले. सो दिस व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, सो दिस व्हाट factors genes for different trait present on different chromosome assort independently. So these are present on different chromosome and that's why they get easily can say assorted and can say go to different gametes. Okay, the same thing, 2 alleles show interaction, one is dominant completely. यहाँ पर हम देखें Y and R, this capital letters ये जो दिखाए, so they are dominant and that's why they are expressed in F1 generation. बाकी ये जो वाले रिसेसिव वो एक्सप्रेस नहीं हुए. सो दिस आर द फाइंडिंग मेंडल हैज गिवन. बट ये फाइंडिंग लोगों ने जब स्टडी किया उसके बाद आफ्टर 1900 मेनी साइंटिस्ट दे स्टडीड मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. करेक्ट, ये सब लॉज वो लोगों ने बाहर में स्टडी किए एंड दे आर स्टडीड इन डिफरेंट कैन से ऑर्गेनिज्म. तो उनको पता चला कि देर आर सर्टेन डेविएशंस. और डेविएशंस क्या क्या है वो हमें आज देखना है. सो डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग. सो इसमें जो फाइंडिंग थे सिंगल ट्रेट, सिंगल फैक्टर. ओके, एक सिंगल ट्रेट है और सिंगल फैक्टर जो हमें यहाँ पर पता चला. सिंगल ट्रेट, सिंगल फैक्टर, 2 alleles showing interaction like co-dominance and incomplete dominance. सिंगल ट्रेट, सिंगल फैक्टर जिसको हम जीन बोलते हैं, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड देर आर 2 डिफरेंट ट्रेट्स. अगर ये 2 alleles आर देयर, दिस 2 alleles व्हेन दे कम टुगेदर देयर विल बी इंटरैक्शन. इंटरैक्शन होगा. वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? इंटरैक्शन नहीं होगा. वन विल बी कम्प्लीटली डोमिनेंट, दूसरा कम्प्लीटली रिसेसिव रहेगा. बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा. इंटरैक्शन लाइक कैन से को डोमिनेंस हो सकता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है. सो दिस इज व्हाट कैन से एक्सेप्शन or can say some deviations from Mendel's law. When a gene or 2 alleles they show interaction and the interaction will be like can say co-dominance and incomplete dominance. ये statement हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे डिटेल में. करेक्ट, जैसे हम डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरेक्शन कैसे co-dominance है, कैसे incomplete dominance है. complete dominance यहाँ पर नहीं है, बराबर ना. ये कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई देता नहीं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है या को डोमिनेंस होता है. ये को डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. दूसरा डिवीजन उन्होंने क्या देखा? सिंगल ट्रेट, सिंगल फैक्टर. जो जीन है, जो हमारा एक जीन जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, सो दैट जीन शो मोर देन 2 alleles. एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं. मोर देन 2 फॉर्म्स दिखा देते हैं, कभी 3 फॉर्म्स, कभी 4 फॉर्म्स, कभी 5 फॉर्म्स आपको दिखा देंगे. सो विद एग्जाम्पल विल सी दैट मल्टीपल अलीजम. ओके, मल्टीपल अलील्स और मल्टीपल अलीलिज्म ये जो एक फिनोमिनन है ये भी हम स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल. सो दिस इज अगेन अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. हम लोगों ने क्या बोला था? सिंगल कैरेक्टर. ओके, उसके लिए ओनली 2 कैन से क्या है? ट्रेट्स है. ओके, 2 alleles है. 2 alleles मीन्स 2 ट्रेट्स. यहाँ पर ऐसे नहीं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं या मोर देन 2 हो सकते हैं. वो कैसे और कौन से एग्जाम्पल उसके लिए वो भी देखना है हमें. देन सिंगल ट्रेट, मोर देन 1 जीन. सो सिंगल ट्रेट पॉलीजेनिक इन एक ही ट्रेट के लिए अलग अलग जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन, एक ही कैरेक्टर दिखाते. दैट्स व्हाट
polygenic inheritance, more than one gene for single trait, showing different epistatic interaction or additive effect. ये जो epistatic है, additive effect है, ये क्या क्या है, ये हमें अभी इस सिलेबस में तो नहीं है, बट विल लर्न इन सम अदर एग्जाम्पल्स, वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे. फोर्थ पॉइंट जो डेविएशन उनको मिला है, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी ट्रेड्स. एक ही जीन है बट दैट विल शो डिफरेंट कैन से एक्सप्रेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशन देता है. वो कैसे देता है? सो दैट्स अगेन सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर, टू ट्रेड्स वही ज़्यादातर नहीं होने चाहिए. एक जीन के लिए दो ही एलील होने चाहिए, बराबर ना, दो एलील होने चाहिए, बट यहाँ पर कितने मल्टीपल एलील्स है, तो इसको बोलते हैं हम एलीलिज्म, मल्टीपल एलील. यहाँ पर सिंगल जीन है, एक ही जीन है, अलग अलग एक्सप्रेशन देता है. वो कैसे देता है वो भी देखना है. दैट्स व्हाट प्लियोट्रॉफी, जो प्लियोट्रॉफी है वो भी हमें देखना है. सो दीज आर द डेविएशंस, वी आर स्टडिंग ऑल दिस डेविएशंस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग. मेंडल ने जो काम किया था पी प्लांट के ऊपर, जो उनको फाइंडिंग मिले थे, उस फाइंडिंग को कुछ डेविएशंस है, वो डेविएशंस हमें स्टडी करने. दैट्स व्हाट अंडर न्यू मेंडलिज्म. इसको क्या बोला जाता है? न्यू मेंडलिज्म बोला जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट डेविएशन हम लोग देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? सो विल टेक एग्जांपल लाइक इन से कलर ऑफ द फ्लावर. ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट एक कलर है रेड वाला, ये रेड फ्लावर, homozygous dominant denoted by capital R, capital R. Homozygous recessive, this is again I can say homozygous plant है, RR, small r, ये white में. Okay, so this is what white color, flower white color. यहाँ पर देखते हैं ये रेड कलर वाइट कलर, उसका क्रॉस बना दिया. ओके, व्हाट विल द गैमेट? गैमेट्स क्या रहेंगे इसमें? ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, सेमिक टाइप के गैमेट बनेंगे, दो दो बनाए तो भी. सो इसको हम एक ही है भाई ले रहे. सो कैपिटल आर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ गैमेट. इसका ये हो सकता है, इसका हो सकता है, और ये आ रहा है. सो दिस इज द गैमेट. ओके, नाउ दिस गैमेट दे यूनाइट टू फॉर्म F1 हाइब्रिड. F1 हाइब्रिड कैसे होना चाहिए? एज पर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल आर स्मॉल आर है. सो दिस कैपिटल आर शुड गेट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट इट इज नॉट एक्सप्रेशन एज इट इज. रेड फ्लावर मिलना चाहिए हमें, बट रेड नहीं मिल रहा है. क्या मिल रहा है? पिंक वाला मिल रहा है. क्या मिल रहा है? पिंक वाला मिल रहा है. क्यों पिंक वाला मिल रहा है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट द डेविएशन. ये डेविएशन है. स्मॉल आर यहाँ पर क्या रिसेसिव है, नहीं एक्सप्रेस होना चाहिए, बट कुछ एक्सप्रेशन होता है क्या नहीं देखते अभी यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेशन का डेफिनेशन. बोथ द एलील्स जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली. पार्शियली एक्सप्रेशन होता है. क्या होता है? पार्शियल एक्सप्रेशन. इनकम्प्लीट, पूरा नहीं होता, थोड़ा हो जाता है, थोड़ा नहीं होता है. सो रेड का पूरा एक्सप्रेशन नहीं है, वाइट का भी पूरा एक्सप्रेशन नहीं है. सो दोनों का मिक्स हो गया, इसलिए आपको क्या मिला है? पिंक कलर मिला है. ओके, सो क्या हुआ है? रेड एंड वाइट का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या होगा? द F1 दैट विल गेट विल बी पिंक, इज नॉट रिजेंबलिंग टू एनी ऑफ द पेरेंट. ना रेड के जैसा दिखा देगा, ना वाइट जैसा दिखा देगा. इट विल लुक लाइक डिफरेंट. सो पिंक फ्लावर ऑफ स्प्रिंग विल बी टोटली डिफरेंट, और कैन से उनमें जो डिफरेंस है वो अपने पेरेंट के साथ रिसेंबल नहीं करते और अलग दिखाई देते. इंटरमीडिएट उनका जो एक्सप्रेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई कैन से ये क्या बोलते हैं? पार्शियल एक्सप्रेशन. Okay, both the pairs they'll express partially. Okay, one allele gene cannot suppress the expression of other allele completely. हम लोगों ने डोमिनेंस में क्या देखा था? The dominant allele suppresses the character or can say expression of recessive allele, a recessive gene. यहाँ पर ऐसे नहीं. So law of dominance को deviate किया यहाँ पर, and that's why यहाँ पर आपको क्या मिला है? जो F1 हाइब्रिड इंटरमीडिएट मिला है. आप F2 जनरेशन देखते हैं. इफ़ यू क्रॉस दिस F1 हाइब्रिड, उसका अगर सेल्फिंग करते हैं, इट विल गेट गैमेट्स. हम लोग बोलते हैं दिस आर मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स है. आर यहाँ पर एक गैमेट बनेगा, दूसरा उसका और दूसरा अगर पेरेंट इसका लेते हैं R1, तो R एंड बराबर ना,
आर आर यहाँ पर मिले कैपिटल और स्मॉल, बराबर। अगर इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, यहाँ पर देखो आर आर ये मिला आपको रेड, आर एंड स्मॉल आर ये पिंक कलर का है, ये भी हेट्रोजाइगस है पिंक कलर, एंड होमोजाइगस रिसेसिव वाइट कलर। जहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव वाइट हो जाता है, होमोजाइगस कैन से डोमिनेंट, वहाँ पर रेड मिल जाता है। सो दीज एक्सप्रेशंस आर सिमिलर टू पेरेंट। पर ये जो हेट्रोजाइगस है दे आर व्हाट इंटरमीडिएट, और उनका कैसे एक्सप्रेशन जो है पिंक कलर का, इट इज़ नॉट सिमिलर टू कैन से रेड और नॉट वाइट, दोनों के बीच का कलर है, एंड दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रहा, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो व्हाट इज डेफिनेशन? बोथ द एलील्स जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली, वन एलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील। एक एलील दूसरे एलील का एक्सप्रेशन या सप्रेस नहीं करता, सो आधे आधे एक्सप्रेस हो जाता है। सो मिक्सचर उसका दिखा इंटरमीडिएट, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल स्टडी किया जाता है मिराबिलिस जलपा में। 4 o'clock प्लांट जो है उसमें आपको ये दिखा देता है, ओके। सो विल गेट इंटरमीडिएट। देन दूसरा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन फ्लावर, एंटीराइनम। एंटीराइनम एक एग्जाम्पल है दूसरा, यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है स्नैपड्रैगन फ्लावर में या मिराबिलिस जलपा प्लांट में या 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। अब इसका रेशो कैसा रहेगा देखिए, ओके। सो फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1। क्या दिखना चाहिए था हमें? 3:1 दिखना चाहिए था, बराबर ना। इंस्टेड ऑफ 3:1 ये क्या दिखा दिया था आपको? 1:2:1। कैसे देखो, 1 completely red, 2 are pink and 1 completely white. So red, 2 pink and 1 white. रेशो क्या बना है? 1:2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। 3:1 होना चाहिए, 3 रेड और 1 वाइट होना चाहिए था। क्या मिला आपको? 1 रेड, 2 पिंक्स एंड 1 वाइट। सो 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो भी कैसे? सेम 1:2:1, बिकॉज आपको क्या मिला यहाँ पर? आर आर, ओके, 2 मिले आपको हेट्रोजाइगस आर, और 1 क्या मिला आपको? आर आर, ओके। सो यहाँ पर रेशियो का हुआ 1:2:1। सो phenotypic ratio and genotypic ratio is very same or exactly similar, correct। यहाँ पर incomplete dominance में जो रेशियो होता है, phenotypic ratio and genotypic ratio क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे हमें complete dominance में क्या दिखाई देता है? 3:1 देगा phenotypic ratio, और genotypic ratio क्या रहेगा? 1:2:1 रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है? 1:2:1। So genotypic ratio and phenotypic ratio are exactly similar when there is incomplete dominance, okay। We have seen it in Mirabilis jalapa or Antirrhinum, okay। So these are 2 examples of incomplete dominance। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कोडोमिनेंस। एक अगर डेविएशन देखेंगे, एक डेविएशन का दूसरा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। अभी ये कोडोमिनेंस क्या है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, कोट कलर और जो स्किन कलर होता है कैटल में, उसका एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पर देखो आप 2 डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए, कैपिटल और कैपिलर। रेड कलर की गाय होती है या रेड कलर की कैटल बोलते हैं उसको, ठीक, यहाँ पर दिखा देगा आपको। सो दूसरा वाइट कलर, बराबर, WW कैपिटल दोनों भी है। इसके अगर गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स होंगे आपके ऐसे, क्रॉसिंग करेंगे इसका। सो दोनों गैमेट फर्स्ट फीलर जनरेशन में कहते कंबाइन होंगे, और आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो मिलना चाहिए था, जैसे अगर एक दूसरे को ये सप्रेस करते हैं तो कोई तो एक डोमिनेंट होना चाहिए था, डोमिनेंट हुआ नहीं है। क्या मिला आपको? बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड। जो कलर का जो कैरेक्टर, दोनों ट्रेट यहाँ पर एक्सप्रेस हो चुके हैं। आधे पैचेस यहाँ पर रेड है, आधे पैचेस वाइट है। यहाँ पर भी देखिए, अगर आपको ये फीमेल बना तो ऐसे दिखा, मेल बना तो ऐसे दिखा, बट यहाँ पर पूरा रेड भी नहीं और पूरा वाइट नहीं, ये मोजैक फॉर्म में आया है, और कैसे बोलते हैं उसको? पैचेस में आया है, ठीक। और इसको बोला जाता है रोवन। ये क्या है? रोवन टाइप। ये जो मिक्स है कलर का, पैचेस में आ जाता है, रोवन टाइप आता है। सो कंप्लीट रेड, कंप्लीट वाइट का अगर हम क्रॉस करते हैं, जो F1 हाइब्रिड मिलेगा वो अलग ही मिलेगा, एंड इट विल हैव अ पैचेस। सो दोनों यहाँ पर जीन्स एक्सप्रेस हो चुके हैं,
दोनों एक्सप्रेस हो चुके एंड देयर एक्सप्रेशंस आर कंप्लीट, पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन है, बट वो पैचेस में है। सो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, बोथ द एलील्स जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर, जो पेयर है इसका, जो बना है पेयर, एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, इक्वल एक्सप्रेशन है, थोड़ा कम नहीं थोड़ा ज़्यादा, इक्वल एक्सप्रेशन, एंड इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो जाते हैं और इक्वल एक्सप्रेस होते हैं। एलील्स जीन्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली और इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील्स। को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमिनेंट एलील बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर कोडोमिनेंट एलील्स, तो आपको आंसर आना चाहिए कोडोमिनेंट एलील्स वेयर इन द पेयर ऑफ एलिलोमॉर्फिक कैन से जीन्स, तो क्या होगा पेयर में, बोथ कैन से एलिलोमॉर्फिक पेयर्स में, दोनों जो पेयर में एलील्स है दे आर एक्सप्रेसिंग इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली। तो इक्वल एक्सप्रेशन है एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, एंड दैट्स वाई आपको रेड भी यहाँ पर मिल रहा है और वाइट भी मिल रहा है, करेक्ट। वाइट भी पैचेस है, रेड भी पैचेस है। सो दोनों में अगर फीमेल अगर मेल होगा तो भी आपको एक्सप्रेशन वही आएगा। सो F1 आपका ये आ जाता है। इफ़ यू सी ना, इसको क्रॉस करते हैं, अगर इसका हम लोग मेल फीमेल का क्रॉस करेंगे और देखते हैं क्या होता है, गैमेट्स कैसे बनेंगे। सो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये जो मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स, आर कैपिटल है यहाँ पर, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, करेक्ट। अभी इसका मिक्सचर आ जाएगा तो कैसे होगा, आर कंप्लीटली रेड आपको मिलेगा यहाँ पर, करेक्ट, कंप्लीट रेड आर है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिला है। डब्ल्यू का यहाँ पर मिला है कंप्लीटली वाइट। सो दो एक्सप्रेशन हमें मिले, एक कंप्लीटली रेड और दूसरा कंप्लीटली वाइट। अभी दूसरा देखते हैं, आर डब्ल्यू, ये वाला, यहाँ पर आपको मिलेंगे पैचेस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, पैचेस दिखाई देते, बराबर, रेड एंड वाइट का मिक्स। दूसरा ये आर और ये डब्ल्यू, अगर यहाँ पर ये भी पैचेस दिखा देते। सो फिनोटाइपिक रेशियो आपको क्या आया, 1:2:1, 1 रेड, 2 रोन, 1 वाइट, करेक्ट। ये जो आप फिनोटाइपिक एक्सटर्नली आपको ऐसे दिखा देते हैं, करेक्ट। दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, आर 1, आर डब्ल्यू 2 एंड डब्ल्यू 1, करेक्ट। सो फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो आपको क्या दिखा देगा, फिर इक्वल दिखा देगा, यस, और सेम ही दिखा देगा। सो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कैटलिक एग्जाम्पल दिया है, एंड दिस इज कोडोमिनेंस, बोथ द एलील्स आर जीन ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वल, इक्वल एक्सप्रेशन है, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंटली। When there is equal and independent expression, then the alleles are called codominant alleles. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, codominant allele बोलते हैं, करेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज व्हाट, कैटल। सो इन कोडोमिनेंस both the alleles are expressed equally and independently. This is the message. In codominance both the alleles are expressed equally and independently. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज कैटल, ये आपका एग्जाम्पल है, करेक्ट। सो कैटल का जो कलर है, स्किन कलर और कोट कलर, वो ऐसे दिखा देता है, ओके। सो वी आर सीन कोडोमिनेंस, ओके। अभी तीसरा डिवीजन हमें देखना है, मल्टीपल एलील, करेक्ट। ना मल्टीपल एलील्स क्या होता है, मल्टीपल एलील्स देखते हैं अभी। मल्टीपल, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द एलील, जो जीन के मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हम लोगों ने देखे थे, 2 ही फॉर्म्स है। 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस करता है, बराबर ना। एंड दैट एक्सप्रेशन विल बी इन 2 डिफरेंट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं 2 अलग अलग ट्रेट। दैट इज व्हाट, अलग अलग ट्रेट क्यों मिलते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग 2 एलील्स ऑफ 1 पर्टिकुलर जीन, एक जीन 2 एलील के अलग अलग एक्सप्रेशन। बट यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर क्या है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, एलील्स के मोर देन 2 है ऑफ अ सिंगल जीन इन अ पॉपुलेशन। अगर पूरा पॉपुलेशन देखते हैं उसमें आपको अलग अलग एलील एक ही जीन की दिखा देंगे। एक ड्रोसोफिला का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एंड इन ड्रोसोफिला यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जो कंडीशन, ये फिनोमेना आपको ड्रोसोफिला में दिखा देता है, ओके। सो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स और एलील्स ऑफ 1 जीन इन पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस, लोकस मीन्स एक ही लोकेशन पे जो जीन होता है उसके अलग अलग क्या मिलेंगे आपको, फॉर्म्स मिलेंगे ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो एक जीन है
और इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम आर नोन एज मल्टीपल एलील्स। तो डेफिनेशन क्या बना है? More than two alternative forms or more than two alleles of a gene in a population occupying the same locus on chromosome or its homologous or homolog are known as multiple alleles। एक क्रोमोसोम और उसका होमोलोगस पार्ट जो होता है दूसरा क्रोमोसोम, सेम पोजीशन पे आपको डिफरेंट फॉर्म से एलील्स मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम का हम डायग्राम निकालते हैं। ठीक, डायग्राम निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। ओके, सो इफ यू सी द क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखा देता है, आपको पता है। क्रोमोसोम हैव 2 आर्म्स, a centromere, correct? And on this, say for example this is the gene, एक जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? द विंग शेप इन ड्रोसोफिला। ये जो जीन है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ द विंग। जो ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई, छोटा सा एक मक्खी जैसी मक्खी दिखा देती है आपको। फ्रूट फ्लाई घर में आते हैं ना, केले, इसके ऊपर आपको ज़्यादा दिन रखे तो उस पर ऊपर वो एग्स डालती है, आपको दिखा देगी। मराठीमध्ये याला घुंगुरटं म्हणतात। ओके, सो जो विंग का शेप है उसके लिए एक जीन होता है, एंड दैट जीन इज एक्सप्रेसिंग डिफरेंट फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन होगा। कैसे होगा? VG हो सकता है। मैं आपको वाइट कलर, ओके, VG प्लस जो लिखा है दैट्स व्हाट नॉर्मल विंग। जो नॉर्मल विंग कैसे दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखो, ये पूरा क्लियर नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया। ये नॉर्मल विंग है। ओके, ये ऐसे पूरे यहाँ से आकर यहाँ तक ऐसे राउंड आपको दिखा देंगे, नॉर्मल विंग, करेक्ट। यहाँ पर भी देखिए नॉर्मल विंग है, एक दूसरे के ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं, नॉर्मल विंग, पूरा शेप उसका नॉर्मल है। एंड इट्स व्हाट VG से वो डिनोट किया जाता है। दूसरा VG निक मीन्स निक्ड विंग। निक्ड विंग कैसे होता है? यहाँ पर देखो निक्ड विंग है। ये निक्ड विंग ऐसे होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता। निक्ड विंग कैसे होते हैं ये यहाँ पर दिखा देंगे आपको। सपोज ये साइड का शेप है, ऐसे निक्ड दिखा देंगे, बराबर ना। ज़्यादा नॉच बड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें आपको ये ऐसे दिखा देंगे। विंग्स है, यहाँ पर दिखा देते। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे गया और यहाँ पर ऐसे आके थोड़ा सा स्लाइट कैसे उसका क्या बोलते हैं, कर्वेचर, उसका थोड़ा सा कर्वेचर है। दिस आर निक्ड विंग्स एंड दिस डिनोटेड बाय VGNI। ओके, तीसरा टाइप है नॉच्ड विंग। यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ आपको ऐसे दिखा देंगे, ये आता है ये, और ये पर यहाँ पर दिखा देगा ऐसे, नॉच यहाँ पर दिखा देगा। सो यहाँ पर देखिए ये नॉच अंदर गया हुआ है ऐसे, करेक्ट। नॉच पूरा ना, नॉच यानी कि ज़्यादा डीपर उसका ये है, यहाँ पर दिखा दे डीपर है ये। यहाँ पर भी देखिए डीपर कुछ ऐसा ऐसा अंदर गया हुआ। सो अगर ये विंग ऐसे रहेगा तो ये कैसे रहेगा? दिस विल बी लाइक दिस, करेक्ट। सो यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चलेगा, ये नेक्ड है और ये नॉच्ड है। सो VGNO notched, then strap wing, yes, VGST, ये आप देखेंगे विंग थोड़े से छोटे हो गए, जो बड़े थे इसका छोटा हो गया, और ये कुछ आपको दिखा देगा ऐसे। सो दिस विल बी स्ट्रिप्ड, ये विंग कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखा देंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सो दिस इज द विंग।
यहाँ पर देखो ये वाले ऐसे यहाँ पर है, करेक्ट। सो VGST इसको बोला गया। वेस्टिजियल विंग्स, VG लिखा है खाली, ओनली VG। सो वहाँ पर कैसे छोटे विंग्स, एकदम छोटे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे ऐसे, ओनली खाली उसका क्या बोलते हैं, उसका छोटा पार्ट ये वाला। सो छोटा सा पार्ट आपको दिखा देगा यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा, बराबर ना, बड़े नहीं, विंग्स एकदम रिड्यूस्ड विंग्स है। सो यहाँ पर वेस्टिजियल विंग्स बोलते हैं, एंड ये वेस्टिजियल है, VG इसको लिखा गया, करेक्ट। सो ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन अनेक अलग अलग क्रोमोसोम पे रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग अलग क्रोमोसोम पे रहेंगे। एक क्रोमोसोम पे ये VT दिखा देगा, VGT यानी VG प्लस, दूसरे क्रोमोसोम उसके अनलग, अगर सेम क्रोमोसोम अगर रहेगा तो उसमें VGNI दिखा देंगे। दूसरे तीसरा क्रोमोसोम होगा तो उसमें VGNO यानी नॉच दिखा देंगे। चौथा पांचवा, सो अलग अलग क्रोमोसोम्स मगर होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही नंबर का क्रोमोसोम, उस नंबर के क्रोमोसोम पे सेम क्रोमोसोम यानी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या रहेगा, अलग अलग उसका एलील रहेगा। एंड दैट्स व्हाई more than 2 alternative forms of allele of same gene in a population occupying the same locus on a chromosome। एक ही लोकेशन पे एक ही जीन अलग अलग फॉर्म में आपको दिखा देगा, उसको हम बोलते हैं डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन। सो डिफरेंट मीन्स मोर देन 2 एलील्स, मोर देन 2 मीन्स मल्टीपल, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म और मल्टीपल एलील्स। सो मल्टीपल एलील्स अराइज बाय म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन सडन चेंजेस हो जाते हैं कुछ बिकॉज ऑफ केमिकल्स, हीट, किसी वजह से अगर म्यूटेशन चेंज होगा सडन, इरिवर्सिबल, वो बदल नहीं होता, वापस नहीं होता, फिर रिवर्ट नहीं होता। सो वाइल्ड टाइप में अगर कोई ऐसे म्यूटेशंस आ जाते हैं, एंड दैट म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट जीन। अमंग देम दे शो डोमिनेंट रिसेसिवनेस, यानी कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट रिसेसिव भी हो सकते हैं, या कोडोमिनेंस जो हम लोगों ने देखा कोविडोमिनेंस भी हो सकता है, और कभी कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है। अगर क्रॉसिंग उसमें करेंगे तो विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, डोमिनेंस, रिसेसिवनेस वो भी दिखाई देगा, कोडोमिनेंस भी दिखा देगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा देगा। सो यू कैन सी VG प्लस जो है दिस इज फॉर नॉर्मल विंग, ये नॉर्मल विंग के लिए, दिस इज स्ट्रिक्ट विंग के लिए, ये आपका नॉस्ट के लिए, ये दिस इज स्ट्रिप एंड दिस इज VG। सो नॉर्मल विंग्स ऐसे उसके थोड़ा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा उसका ना ये कर्वेचर आ जाता है, देन नॉच बन जाता है, तो छोटे बन जाते हैं स्ट्रिप वाले और छोटे स्टम्प जैसे, या छोटे छोटे दिखाई देंगे ना ऐसे विंग्स उसके। तो इसमें ये एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला का। एंड दिस इज व्हाट कैन से कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन विथ डिफरेंट कैन से मल्टीपल एलील्स, अलग अलग एलील से वो एक ही पोजिशन पे, सो एक ही लोकस पे है। सो दैट्स वाई सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, एक ही लोकेशन पे यहाँ पर ही है वो जीन, बट उसके अलग अलग फॉर्म्स है। दैट्स व्हाट मल्टीपल एलील्स। सो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीपल एलील का। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम जो देखेंगे इट इज रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप एंड RBCs। RBC जो होता है हमारे, RBC के ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं, और एंटीजन की वजह से आपको ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए आता है, करेक्ट। सो इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, कुछ लोग, एक बड़ा पॉपुलेशन है लोगों का देखो, उसमें कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है, कुछ लोगों का ए भी होता है, तो कुछ लोगों का वो होता है, करेक्ट। ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा। ओके, सो ये ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ये डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC। RBC के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं उसके कारण हम लोग ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके लिए क्या अलग अलग मेथड्स भी है, और उसके कारण हम अगर ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है तो उसके कारण ही अलग अलग लोगों में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती, उसी ब्लड ग्रुप का किसी से ब्लड लिया जाता है और उनको दिया जाता है, करेक्ट। सो देखते RBC, ये जो स्ट्रक्चर ही RBC है, यहाँ पर जो दिया है ना राउंड वाला, ऐसे ये राउंड वाला RBC है, और जो ये लिखा है दैट इज व्हाट द एंटीजन, एंड उसका
एंटीजन ए है इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ए ब्लड ग्रुप, करेक्ट। अभी समझ में आया आपको? सो दिस इज आरबीसी विथ एंटीजन बी, इसलिए ये बी से डिनोट किया है, बी ब्लड ग्रुप वाला। तीसरा यहाँ पर दिखाई देते ये बी, यानी कि इसमें दो अलग अलग एंटीजन साइड बाय साइड है, इसके कैसे ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप ए बी आया। और ये ओ ब्लड ग्रुप से कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप दिखा देता है। ओके, नाउ ऑल दीज कैन से एंटीजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल जीन, उसके अलग अलग अलील्स होते हैं, और वो जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ह्यूमन में हमारा क्रोमोसोम नंबर जो 9 है उस पे ये जीन्स होते हैं, करेक्ट। जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। सो सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है हमारा, इसका सेंट्रोमेर है, और यहाँ पर ये जीन लोकेटेड है। सो दिस इज द जीन लोकेटेड, सेम लोकस, एक ही जीन है, एक एलील उसका क्या करेगा, इट विल फॉर्म IA. So this is what gene I will produce antigen A. एक ह्यूमन में आपको ये दिखा देगा, सेम क्रोमोसोम इन अनदर ह्यूमन और अनदर पर्सन में आपको सेम क्रोमोसोम पे सेम जीन क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस IB. दैट्स व्हाट अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B. किसी में ये जीन जो I जीन है वो रिसेसिव रहेगा, और यहाँ पर वो रिसेसिव जीन कुछ भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो द क्रोमोसोम वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस ओ ब्लड ग्रुप, करेक्ट। द जीन विल प्रोड्यूस ओ ब्लड ग्रुप। तो ये एक ही जीन की अलग अलग एलील है। सो द एलील्स जो मेंडल ने बोला था कि देयर आर 2 एलील्स फॉर 1 जीन एंड 1 जीन कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो 2 अलग अलग एलील होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 अलग अलग एलील बने। सो इन अ पॉपुलेशन आपको ये दिखा देता है। सेम थिंग जैसे हम लोगों ने ड्रोसोफिला का देखा, ज़्यादा ड्रोसोफिला स्टडी किए, कुछ ड्रोसोफिला के विंग राउंड होते हैं, कुछ के नॉच्ड होते हैं, कुछ ऐसे ड्रोसोफिला का निक्ड होता है या स्ट्रिप्ड होता है या वेस्टिजियल होते हैं, छोटे विंग्स, क्या। तो सेम यहाँ पर अलग अलग लोगों में अलग अलग ब्लड ग्रुप आपको दिखा देगा। ओके, सो एंटीजन इज व्हाट बेसिकली अ प्रोडक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एंड दैट जीन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये होता है ये सतह पे, यानी कि सेल के ऊपर आपको दिखा देगा। ये जो सेल है, सेल के ऊपर आपको, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये क्या दिखा देगा, एक अलग अलग। सो राउंड से मैंने यहाँ पर जो दिखा दिया, सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट राउंड से मैंने दिखा दिया, राउंड वाला एक एंटीजन रेड कलर से, ये वाला दिखा देता मैं ग्रीन कलर से, आपको ग्रीन एंड स्क्वायर में दिखा देते हैं, करेक्ट। सो दिस इज आपको समझ में आएगा ये क्या है। सो दिस इज व्हाट बी एंटीजन, ठीक। और यहाँ पर आपको दोनों दिखाई देते हैं, बी भी दिखा देगा और ये भी दिखा देगा। सो दिस इज व्हाट मल्टीपल एलील। अब देखो, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील ऑफ अ जीन, इस क्रोमोसोम में जो जीन है ऑफ दैट जीन, मोर देन 2 एलील्स, 2-3 अलग फॉर्म्स इसके दिखा देते हैं इन अ पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस, सेम ही लोकस पे है, सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम और इट्स होमोलोगस। सेम टाइप के क्रोमोसोम, अलग अलग ह्यूमन में सेम नंबर का 9 नंबर, ये वाला सेम क्रोमोसोम, हर एक ह्यूमन में 9 नंबर का क्रोमोसोम होता है, 9 नंबर के क्रोमोसोम इसी पोजीशन पे ये जीन रहेगा, बट दिस जीन विल शो डिफरेंट एक्सप्रेशन। ओके, वो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ एंटीजेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीन, एंड दिस एंटीजेंस आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ कैन से आरबीसीज। ये जो आरबीसी राउंड राउंड मैंने दिखाया रेड कलर वाले, इसलिए दिखाए क्योंकि ब्लड उसमें होता है। ओके, एंड व्हाट इज कैन से रोल ऑफ आरबीसी, आरबीसी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड को लेके जाते हैं अलग अलग पार्ट में। सो दीज आर डिफरेंट कैन से एलील्स ऑफ सेम जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 9, एंड इसलिए आपको दिखाई देते डिफरेंट ब्लड ग्रुप। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स और मल्टीपल एलीलिज्म इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो नो, करेक्ट, समझ में आया अभी ये, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म,
इन अ पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस, ह्यूमन का पॉपुलेशन देखा गया, ह्यूमन के पॉपुलेशन में अलग अलग आपको ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं, हर एक का ब्लड ग्रुप अलग होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर आपको दिखा देगा, दिस इज व्हाट वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ए बी का, दिस इज कोडोमिनेंस। एक ह्यूमन में आपको क्या दिखाई देगा, एंटीजन बी भी होगा और ए भी होगा सेल पे, ये आरबीसी के ऊपर दोनों दिखाई देते हैं, दिस इज कोडोमिनेंस। यहाँ पर जो दोनों जीन है वो क्या हुए, एक्सप्रेस हुए, करेक्ट। उनका एक्सप्रेशन कैसे, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है और वो एक दूसरे को सप्रेस भी नहीं करते। सो दिस इज व्हाट कोडोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जाम जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पर, करेक्ट, यस। सो मल्टीपल एलील्स हम लोगों ने देखे, 2 एग्जाम्पल, वन ड्रोसोफिला और दूसरा ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग। अब जो 4th वाला हम लोग यहाँ पर स्टडी करें, प्लियोट्रॉपी, वन मोर डेविएशन टू द मेंडल्स लॉ। मेंडल का जो एक्सप्रेशन है, मेंडल्स लॉ और कैसे जो रेशो मिल जाते हैं उनके लिए एक और डेविएशन यहाँ पर है, प्लियोट्रॉपी। सो प्लियोट्रॉपी एक एग्जाम्पल हम जो स्टडी करेंगे, विल स्टडी इट विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। जो आरबीसीज है उनका जो शेप होता है, वो शेप जो बनता है इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल इन आरबीसी। और जो हीमोग्लोबिन होता है, बराबर ना, वो हीमोग्लोबिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम कैन से हार्ट, जैसे लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाता है, ब्लड में ब्लड हार्ट में आ जाता है, हार्ट के थ्रू डिफरेंट पार्ट हो जाता है। सो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है इट इज़ व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कैन से टू गेट ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, करेक्ट। और ये जो ऑक्सीजन लिया जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में रोल होता है ऑक्सीजन लेके जाने का, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन अगर हम देखेंगे उसमें आरबीसी कैसे होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन में अगर आरबीसी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, एक छोटा डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आरबीसी आपके ऐसे रहेंगे, करेक्ट। और एनीमिक जो होता है मोस्ट प्रोबेबली जिसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डिफेक्टिव रहेगा, तो मे बी विल गेट हाफ मून शेप्ड आरबीसी, कुछ आपको ऐसे आरबीसी दिखा देंगे, करेक्ट। सो यहाँ पर थोड़ा मैं, सो दिस इज द आरबीसी, पूरा आपका आरबीसी ऐसे, और ये आरबीसी कैसे रहेगा, आप कुछ ऐसे आपको दिखा देंगे। सो हीमोग्लोबिन है बट थोड़ा डिफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ ये शेप आपको ऐसे दिखा देता है, ठीक। ना दिस आरबीसी, ये जो आरबीसी सिकल सेल कब बनते पता है आपको, दे बिकम सिकल सेल शेप्ड। और सिकल शेप्ड ये हाफ मून शेप्ड कब बनते हैं, व्हेन द कंडीशंस आर लाइक कैन से वेरी लो ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, अगर कोई इंसान एनेमिक है और ऑक्सीजन कम हो गया, अंडर दैट कंडीशन उसके जो आरबीसी होते हैं सिकल सेल में जाते हैं। अदरवाइज दे लोग थोड़ा सा नॉर्मल जैसे दिखा देते हैं, दे कैरी द ब्लड, ओके, दे कैरी द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट अगर कुछ सर्कमटेंसेस है, जैसे आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे गए, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ऐसे कंडीशन में अगर उसको ऑक्सीजन कम हो जाता है, वहाँ पर उनका शेप चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाट एनीमिक लोगों को, जो नॉर्मल होते हैं उनको नॉर्मल में वही रहेगा, इसलिए ना हम लोग वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोविजन कर देते हैं, ओके। सो इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन, तो देखते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, इट इज़ व्हाट डिनोटेड बाय HbA। नॉर्मल इंसान में HbA से होता है। और जो एनीमिक कैरियर होता है उनमें एक ये जो होता है, दिस इज HbS बोलते हैं। सो दिस इज HbS, यहाँ पर लिखा है। नॉर्मल जीन डोमिनेंट होता है HbA,
एंड सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय रिसेसिव HbS। ये जब दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा, दिस ये कॉम्बिनेशन में जब आएगा तो एनीमिक कंडीशन बन जाती है। करेक्ट, HbA एंड HbS। करेक्ट, ये समझ में आया। सो प्लियोट्रॉपी मीन्स व्हाट? सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 और मोर और डिफरेंट ट्रेट। जो 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट है उसको जब सिंगल जीन कंट्रोल करता है, एक ही जीन अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एंड द फिनोमेनन उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। सो दिस जीन्स आर प्लियोट्रॉपिक जीन्स। दिस आर व्हाट? प्लियोट्रॉपिक जीन्स। और ऐसे जीन 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ओके, नाउ टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 2 कैरियर्स है, HbA HbS। हम लोगों ने देखा पहले, यहाँ पर देखो रिसेसिव कॉज्ड बाय HbS, डोमिनेंट क्या हमारा? HbA है। सो बोथ द कॉम्बिनेशन आर हियर, HbA भी है और HbS भी है। सो दैट्स व्हाई द पर्सन इज कैरियर। एक कैरियर है, ओके, दिस ऑल्सो द कैरियर, फीमेल भी कैरियर है, HbA HbS। करेक्ट। और इनमें कैसे रहेंगे? नॉर्मल कंडीशन में इनके हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट दिखाई देगा नहीं आपको, बिकॉज नॉर्मल कंडीशन है, पूरा ऑक्सीजन है। तो आपको ये RBCs कुछ ऐसे दिखा देंगे, स्लाइटली राउंड, कुछ ऐसे भी दिखा दे सकते हैं। ओके, ये दोनों आपको दिखा देंगे यहाँ पर, बट दिस इज नॉट अ कोडोमिनेंस। ओके, ये अलग अलग ये आपको दिखा देंगे। सो नॉर्मल कंडीशन में, दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं कैरियर। दोनों है, रिसेसिव जीन भी है एंड यहाँ पर क्या डोमिनेंट, दोनों इसमें आपको दिखाई देते हैं। ओके, सो व्हेन यू कैन से मैरी, इनका शादी कर देते हैं दोनों कैरियर का, मेल और फीमेल का शादी हो जाता है, बोथ आर कैरियर, दोनों कैरियर है, दोनों जीन कैरी करते हैं, उनमें रिसेसिव जीन कैरी हो जाता है। और उनके जो गैमेट्स बनेंगे, अभी मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट देखते हैं। सपोज दिस आर गैमेट्स HbA एंड HbS। ये फीमेल के गैमेट है, मेल के गैमेट HbA एंड HbS, दोनों गैमेट हम लोगों ने देखे। अभी कंडीशन क्या? HbA HbA, ये दोनों यहाँ पर हम लोग लाते हैं तो क्या होगा? HbA HbA नॉर्मल रहेगा, इंसान नॉर्मल रहेगा, उनके सब RBCs कैसे रहेंगे? राउंड, या RBCs ऐसे रहेंगे उनके। करेक्ट, डन। HbA HbS सिकल सेल कैरियर है, HbA एंड HbS। इनके RBCs जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देंगे। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ये शेप चेंज हो सकता है। करेक्ट, ये कुछ ऐसा दिखा देगा अंडर दैट कैन से कंडीशन। सो कैरियर है, कंडीशंस अगर एबनॉर्मल हो जाती है, ऑक्सीजन एकदम कम हो जाएगा, तो सेल्स विल बिकम लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैरियर। यहाँ पर क्या? HbS HbA, दिस ऑल्सो कैरियर। ये भी कुछ आपको सेल्स ऐसे दिखा देंगे RBCs, बिकॉज ऑफ कैन से डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन या रिसेसिव जीन यहाँ पर है एक, सो कैरियर है। तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर दिखा देंगे, अलग अलग से, थोड़ा नॉर्मल थोड़ा सब नॉर्मल। सिकल सेल कैरियर है अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन। और ये पूरा HbS HbS सिकल सेल एनीमिक, और ये जो इंसान जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो तैयार होगा, बट मे बी दिस विल नॉट रिमेन लाइव बिकॉज ऑफ कैन से पूरा रिसेसिव कंडीशन है। यहाँ पर लिखा है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय रिसेसिव HB। ये जो रिसेसिव एस है ना HbS में, एंड नॉर्मल जीन होता है HB1। यहाँ पर लिखता है फिनोटाइपिक रेशो 1:2 आ जाता है। क्यों आ जाता है पता आपको 1:2? क्योंकि रिसेसिव होमोजाइगोट डाइज, ये क्या होता है? मर जाता है। ऐसे कंडीशन में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बिकॉज वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू लाइव, और ये सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। सो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, और कैन से उसकी लाइफ कंटिन्यू नहीं होती। सो दी कैन से फिनोटाइपिक रेशो 1:2 आएगा इंस्टेड ऑफ 3:1। ये 3:1 होना चाहिए था फिनोटाइपिक रेशो, यानी नॉर्मल जैसे दिखने चाहिए थे, दिखे नहीं, बिकॉज ये 1:2, यानी कि 1 नॉर्मल, 2 कैन से कैरियर, और जो एनीमिक है
उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए वो रेशो 3:1 से होगा 1:2। समझ में है? सो व्हेन यू कैन से मैरी 2 कैरियर, 2 मेल और फीमेल जो होते हैं ना, मेल और फीमेल का अगर शादी हो जाता है, बोथ आर कैरियर, तो उसमें क्या होगा, उनके बच्चे एक तो नॉर्मल हो सकते हैं या कैरियर हो सकते हैं। अगर रिसेसिव कैरेक्टर दोनों एक साथ आए तो बच्चा तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज सेल्स आर एनेमिक, और कैसे ये आरबीसीज कैसे पूरे सिकल सेल जैसे ऐसे रहेंगे, वो तो नॉर्मल हो गए नहीं। ओके, सो दैट्स वाई कैन से 2 कैरियर मैंने यहाँ पर दिखा है, सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर, मेल एंड फीमेल की शादी हो जाता है तो एक तो बच्चा नॉर्मल हो सकता है या कैरियर हो सकते हैं दोनों, या अगर ये कंडीशन अगर आया दोनों, अगर यहाँ पर जो गैमेट्स है रिसेसिव गैमेट्स अगर आ जाते तो डेथ होगी। अब देखते यहाँ पर दूसरा एक पार्ट में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर एक फीमेल कैरियर है एंड सपोज शी मैरिज विथ ए नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल मेल के साथ एक फीमेल अगर शादी कर लेती है और जो फीमेल है कैरियर आपको पता है, तो क्या होगा? नॉर्मल इंसान की जो गैमेट है वो कैसे है? एचबीए रहेंगे, करेक्ट? ये एचबीए। कैरियर के गैमेट्स में क्या आएगा? एचबीएस आएगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड कंडीशन में सोमाटिक में एचबीएस है, कैरियर उसके साथ एक एस है, करेक्ट? अभी एक गैमेट, इनके गैमेट तो सेम ही बनेंगे, सो ये एचबीए और इसके साथ फीमेल का एचबीए आ जाता है तो इंसान बनेगा नॉर्मल। ये बेटा होगा, ये बेटी होगी, नॉर्मल रहेगा। अगर एचबीए एचबीएस के साथ ये 2 गैमेट का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये बनेगा सिकल सेल कैरियर। तो नॉर्मल इंसान के साथ शादी करने के बाद भी चांसेस आर देयर, नॉर्मल भी बन सकता है बच्चा या कैरियर भी बन सकता है। अगर बच्चा कैरियर बना और उसने कैरियर के साथ शादी कर दी तो चांसेस क्या है यहाँ पर आपको 1, अगर एक बच्चा होगा तो नॉर्मल होगा या सिकल सेल कैरियर हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एनीमिक कंडीशन, करेक्ट? सो चांसेस 3 है यहाँ पर। किस लिए 3 चांसेस है? ये देखो 1:2, 3 चांसेस कैसे? एक तो नॉर्मल बनेगा, दूसरा 2 कैरियर बन सकती है, और तीसरा जो होता है, चौथा होता है, वो क्या होगा? डेथ हो सकती है उसकी, लाइफ ही उसकी कंटिन्यू नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट कैन से फिनोट्रोपिक जीन, सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन 2 ट्रेड्स। फिनोटाइपिक रेशियो उसका ऑलवेज 1:2 रहेगा इंस्टेड ऑफ 3:1। क्यों? बिकॉज एनेमिक कंडीशन में लाइफ कंटिन्यू होती नहीं तो डेथ वहाँ पर हो जाती है, और ये बस 1:2 यानी कि 1 नॉर्मल एंड 2 कैरियर्स यहाँ पर दिखाई देंगे इंस्टेड ऑफ 3:1 रेशियो, बिकॉज द रिसेसिव होमोजाइगोट डाइज, ये उसकी डेथ हो जाती है। द सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय रिसेसिव, एचबीएस जो है इसी वजह से होता है, एंड नॉर्मल डोमिनेंट होता है एचबीए। ओके, सो दिस इज व्हाट प्लियोट्रॉफी, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म और प्लियोट्रॉपी, और इसको जो जीन्स बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं इसको। सो दीज आर सम ऑफ द डेविएशन। वी आर सीन 4 डिफरेंट कैन से एग्जाम्पल्स फॉर कैन से कंप्लीट डोमिनेंस जो होता है उसको एक डेविएशन आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा एक डेविएशन आया दैट्स व्हाट कोडोमिनेंस, देन मल्टीपल एलिलिज्म हम लोगों ने देखा, एंड प्लियोट्रॉपी। ओके, सो प्लियोट्रॉपी, सो 4 डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए, एंड दीज आर द डेविएशंस। अब देखते हैं क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर जो आपके बुक में दिया है। When phenotypic and genotypic ratios are same, then it is an example of, example किसका ये? Example of what? Example of what? ये example क्या है? क्या example रहेगा इसका? यहाँ पर आपको example देना है। Example of what? लिख दो यहाँ पर। क्या example आएगा इसका? When phenotypic and genotypic ratios are same, then it is example of which? Dominance, codominance, incomplete dominance या multiple alleles or cytoplasmic inheritance? क्या रहेगा ये? Example of it's what? Incomplete dominance, correct? Incomplete
कैसे देखते, हम लोगों ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबली जल्पा और एंटीराइनम द स्नैपड्रैगन फ्लावर जो होता है, व्हेन फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम, यहाँ पर देखा हम लोगों ने क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो 1:1:2:1, ये वाला। मॉर्फोलॉजिकल वहाँ पर क्या दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है, 2 पिंक दिखते हैं, एक वाइट। व्हेन यू क्रॉस दिस टू, वाइट और रेड में जो क्रॉस किया हम लोगों ने, वाइट और रेड फ्लावर में क्रॉस किया, तो जो F1 मिलता है वो पिंक मिलता है। F2 में अगर देखेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पिंक रहेंगे, एक रेड रहेगा, एक वाइट रहेगा। सो फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, जैसे 3:1 होना चाहिए था, बट ये 3:1 नहीं, ये क्या 1:2:1 है। एंड इट्स वेरी एग्जैक्टली सिमिलर टू जीनोटाइपिक रेशियो। जैसे आपने देखा RR, ओके, RR एंड RR, सो ये 2 1 and ये 1, so 1:2:1, so both the ratio, this is 1:2:1, दोनों सेम है। और ये क्या दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो ये क्या हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल मिराबली जल्पा। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन से आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। क्या क्या डेफिनेशन रहेगी, देखो क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है, डेफिनेशंस क्या क्या हो सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हो सकता है। डिफाइन कंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, डिफाइन मल्टीपल एलील्स, डिफाइन प्लियोट्रॉपी। जो हम लोगों ने देखे 4 एग्जाम्पल, उसके डेफिनेशंस आ सकते हैं। व्हाट इज कैन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस, व्हाट इज कैन से प्लियोट्रॉपी, व्हाट इज मल्टीपल एलील, ये आपको एक एक करके डिफाइन करना है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अभी देखा हम लोगों ने। डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बोथ द एलील और जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली। ये पार्शियल एक्सप्रेशन है, क्या है, पार्शियल एक्सप्रेशन। वन एलील cannot suppress the expression of other allele, एक allele जो होता है that cannot suppress the expression of other allele। मिराबली जल्पा कोडोमिनेंस नहीं, हम लोगों ने क्या देखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, करेक्ट। सो यहाँ पर पार्शियल एक्सप्रेशन होता है, एक दूसरे को पूरी तरह वो सप्रेस नहीं करते। एक डोमिनेंट जो होता है वो भी एक्सप्रेस दिखाई देता है, और जो दूसरा होता है वो भी, बट दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। जैसे रेड और वाइट का अगर क्रॉस किया तो पिंक बनेगा, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी दूसरा डेफिनेशन देखते, डिफाइन कोडोमिनेंस। बोथ द एलील्स और जीन्स ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, इक्वल एक्सप्रेशन है, एंड इंडिपेंडेंट, उसको कोडोमिनेंट एलील बोलते हैं। इक्वल एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, जैसे कोट कलर इन कैटल, कैटल में हम लोग देखा अगर हम लोग रेड एंड वाइट का क्रॉस करते हैं, वहाँ पर जो हमारा F1 बनता है वो बनता है रोन टाइप। सो व्हाट विथ कैन से रेड एंड वाइट पैचेस। तीसरा डेफिनेशन हम लोगों ने देखा प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपिक जीन, सिंगल जीन कैन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेड्स। फिनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म। सिकल सेल एनीमिया एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया प्लियोट्रॉपी में, करेक्ट, जहाँ पर कैरियर होते हैं। कैरियर, 2 कैरियर में अगर शादी हो जाती है तो नॉर्मल भी हो सकते हैं बच्चे या कैरियर भी हो सकते हैं। अगर रिसेसिव आया, करेक्ट, तो रिसेसिव में वो डेथ होगी, इसलिए उसका रेशियो होता है, क्या होगा उसका रेशियो 1:2। ओके, तीसरा डेफिनेशन हमें देखना है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील, एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, एंड दैट अल्टरनेटिव फॉर्म कैन बी 2, 3, 4, 5, 2 से ज़्यादा, जैसे हम लोगों ने देखा ड्रोसोफिला में, और तीसरा हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल देखा हम लोगों ने ब्लड ग्रुप का। ओके, सो दिस आर व्हाट द डेफिनेशन, एक एक मार्क्स ले आ सकते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डिफरेंस देना है। सो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। वन एलील नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट और अदर, ये क्या करता है, पार्शियल एक्सप्रेशन देता है। क्या करते हैं, पार्शियल एक्सप्रेशन। बोथ द एलील्स इक्वली डोमिनेंट,
और वो क्या करते हैं, दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं। सो दिस डेफिनेशन में दोनों कोडोमिनेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेशन। हेट्रोजाइगस फिनोटाइप में क्या होगा, ब्लेंडेड और इंटरमीडिएट। हम लोगों ने देखा रेड एंड वाइट का अगर क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या बनता है, पिंक, रेड वाइट पिंक बनेगा, करेक्ट। ये रहा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोथ द ट्रेट्स एक्सप्रेस, यहाँ पर रह गए बोथ जो ट्रेट वो एक्सप्रेस हो जाते, या इसलिए आपको ना पैचेस में एक्सप्रेशन दिखाता है कैटल का जो होता है। अपीयरेंस के साथ न्यू फिनोटाइप, पिंक यहाँ पर नया फिनोटाइप दिखा देता हूँ। नो पेरेंट के साथ वो मैच ही नहीं होगा, दोनों पेरेंट ना रेड रहेगा ना वाइट रहेगा, ये पिंक ही बनेगा। ड्यूअल फिनोटाइप, रेड भी और वाइट भी दोनों यहाँ पर एक्सप्रेस होते पैचेस में, जैसे आप लोगों ने कैटल क्या देखा। एग्जाम्पल क्या है, स्नैपड्रैगन और मिराबिल जलपा। स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है या मिराबिल जलपा, फोरोक्लॉक प्लांट। रोन इन कैटल, कैटल में जो रोन होता है F1 हाइब्रिड, वो पैचेस वाला मोजाइक वाला उसमें कलर दिखा देता है। एंड दैट्स वाई दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कैन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। सो हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर सीन। आज के लेक्चर में बहुत सारा हम लोगों ने देखा डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग, क्या क्या डेविएशंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक डेविएशन देखा, कोडोमिनेंस दूसरा एविडेंस देखा हम लोगों ने जो एक डेविएशन का है। तीसरा हम लोगों ने देखा मल्टीपल एलील्स विथ 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने इसमें। और फोर्थ वाला जो देखा तो प्लियोट्रोपिज्म। ओके, ये सब एग्जाम्पल, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए। सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, यहाँ से आपको स्टडी करना है। पूरा वीडियो देखो आप स्टार्ट से एंड तक, क्या क्या मेंडल ने बोला था, कैसे कैसे डेविएशंस आए और ये डेविएशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे स्टडी किए गए, और वो डेविएशंस अभी कैसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है वो भी मैंने एक एक करके आपको दिखा दिया है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आएंगे वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।